السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج الحمدللہ ہمارے لیے الکاف کے لیے ایک اور خوشی کا دن اور موقع ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت مفتی شاہد عبید صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہیں۔ حضرت کی اپنی بے شمار مصروفیات ہوتی ہیں، تو آج ان سے کچھ وقت لیا، آنے والے حج کے حوالے سے کچھ بات چیت ہو جائے اور جو حجاج اکرام جا رہے ہیں ان کا حج بہتر ہو جائے۔ تو اس میں دو پہلو ہوں گے، کچھ سوال و جواب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کچھ مسائل جو ضرورت میں ہر حاجی کی، اور کچھ اخلاقی اعتبار سے بھی کہ اس میں کوالٹی کو کیسے بہتر کر لیا جائے، اس کا معیار کیسے بلند ہو جائے کہ حج مبرور مل جائے۔ جی حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حکومت سعودیہ نے قربانی کا مکمل نظم اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا، بلکہ مجھے یاد ہے کہ سب سے پہلے حج میں جانور خود خرید کے اپنے سامنے ذبح کروائے تھے، اور ایک دفعہ ہاتھ سے بھی ذبح کرنے کا موقع ملا۔ اچھا، یہ تو ہوتا رہا، اور اس کے بعد یہ ہو گیا تھا کہ بھائی جب ہم پرائیویٹ جا رہے ہیں تو گروپ لیڈر نے کسی پرائیویٹ طریقے سے سارا کام کروا لیا، بڑے آسانی کے ساتھ ہم نے رمی کی، رمی کے بعد ان کو کال کر دی، جناب ہو گئی رمی، ان کا جی ٹھیک ہے انتظار کریں، ادھر سے انہوں نے ذبح کیا، ادھر سے فون آ گیا، چلو جی اللہ کا پورا ہو گیا، الگ کروا لیا۔ تو ترتیب ہمارے یہاں واجب ہے احناف ہے۔ اب سارا کنٹرول جب گورنمنٹ کے پاس آ گیا ہے اور یہ پرائیویٹ سیکٹر کا جو اتنا بھی اس میں سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا، تو اس میں ترتیب کا کیا حکم ہے اور ہم کیا آپ کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم صاحب، یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ ترتیب احناف کے نزدیک واجب ہے، یہ مفتہ بہی قول ہے۔ ٹھیک، سب سے پہلے رمی ہے، اور رمی کے بعد پھر اس کے بعد قربانی ہے، اور قربانی کے بعد حلق ہے۔ جی، یہ ترتیب اگر الٹ ہو گئی تو دم واجب ہو جائے گا، کیونکہ واجب ہے، ظاہر ہے واجب کے چھوٹنے سے دم آ جائے گا۔ اب اگر یہ ہمارے اختیار میں نہیں رہا، گورنمنٹ آف سعودیہ نے یہ خود اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی تو کوئی ٹائم دے گی نا کہ اس وقت تک ہم آپ کی قربانی کر لیں گے۔ جی ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب جو ہمارے بس میں ہے نا، شریعت بس سے بڑھ کر کسی کو مکلف نہیں بناتی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ٹھیک، وہ یہ ہے کہ جو وہ ٹائم دے رہے ہیں اس سے پہلے ہم قربانی نہ کریں۔ ٹھیک، اس سے پہلے ہم رمی سے فارغ ہو جائیں، اس سے پہلے تسلی سے رمی سے فارغ ہو جائیں، اور یہ اس کو یقینی بنائیں کہ اس وقت سے پہلے ہم نے رمی کر لی ہے، کیونکہ رمی اگر قربانی کے اس ٹائم کے بعد آ جاتی ہے، ظاہر ہے پھر بھی دم ہمارا فالٹ آ گیا۔ یہی کہا نا، اپنی طرف سے کوتاہی کوئی نہ چھوڑے۔ پھر اس کے بعد جو ٹائم انہوں نے دیا اس میں مزید احتیاط یہ ہو جائے کہ اس کے 1.5 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد اپنی قربانی کر لیجیے۔ اچھا، اب جتنا بھی مجمع ہے ماشاءاللہ ملین میں 25-30 لاکھ کا اگر مجمع ہے، تو یہ 3 دن کے اندر یا 4 دن کے اندر 25 لاکھ قربانیاں کر لیں گے یا چلتے رہیں گے؟ کیونکہ وہاں پہ ترتیب واجب نہیں ہے۔ میں نے ایک دفعہ یہ پوچھا تھا، اور وہاں انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں ٹائم کی بھی قید نہیں ہے، 3 دن کی بھی قید نہیں ہے، 15 دن تک بھی کر سکتے تو چلتے رہے۔ اب اس میں صداقت کتنی ہے یہ مجھے نہیں پتا۔ اس سلسلے میں بعض ہمارے ساتھی اس وقت بھی ایسے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارا کوئی ایسا نظم ہے کہ ہم چھپ کے ہم اگر جائیں جا کے کرنا چاہیں انفرادی طور پر 2 4 10 12 بندوں کر لے گا، نہیں، ہر گروپ میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جا کر لیتے ہیں۔ جیسے میرے خیال میں وہ ٹور آپریٹر جا کر کرواتے تھے نا، سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی ہوتی تھی، وہ ذرا شاید مشکل ہو گیا۔ بہرحال اگر یہ ممکن ہو تو یہ کر لی جائے، اور اگر ممکن نہ ہو تو جو انہوں نے ٹائم دیا ہے اس کے گھنٹے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کا ہم احتیاط کر لیں۔ پھر اگر وہ نہیں کرتے تو وہ ان کی ذمہ داری ہے، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا تو ہم بری ذمہ داری انشاءاللہ تعالیٰ۔ حضرت مفتی صاحب کے جواب کا خلاصہ اس میں یہ ہے کہ رمی ہم اس ٹائم سے خاصا پہلے کر لیں، پھر انتظار کریں اس ٹائم کا، جب وہ ٹائم آ جائے جو گورنمنٹ نے قربانی کا دے دیا ہے، اس کے بعد 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بعد جو ہے نا وہ پھر حلق کروائیں۔ اچھا، ابھی جو اس میں انتظار میں بعض دفعہ کچھ لوگ 4 گھنٹے بھی انتظار کر سکتے ہیں احتیاط میں، اور کچھ تو ہم نے احرام پہنا ہوا ہے تو طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، مطلب اس ترتیب میں طواف زیارت کا تو طواف زیارت کا ترتیب میں کوئی دخل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم تو رمی سے بھی پہلے طواف زیارت کر سکتے ہیں، رمی کے بعد بھی کر سکتے ہیں قربان، یعنی حالت احرام میں طواف زیارت ہو سکتا ہے۔ طواف زیارت کے حوالے سے ترتیب کوئی لازم نہیں ہے۔ اچھا، تم طواف زیارت پر آ گئے تو اس میں پھر ایک اور بہت اہم سوال ہے، طواف زیارت
तो फर्ज है, उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है इसको छोड़ने का। अब जो लोग शॉर्ट पैकेज पे जाते हैं 14-15 दिन के ऊपर, तो बड़ा उनको लिमिटेड टाइम होता है, वो मस्तूरात जो अय्याम में होती हैं वो तवाफ़ ज़ियारत का क्या करें और तवाफ़ वदा का क्या करें, तो इन दोनों के अहकामात क्या क्या हैं शॉर्ट टाइम की वजह से? देखिए, तवाफ़ ज़ियारत तो फ़र्ज़ है। हज में दो ही चीज़ें फ़र्ज़ हैं, एक तवाफ़ ज़ियारत है और दूसरे नंबर पर वकूफ़ अरफ़ा है। दो ही चीज़ें फ़र्ज़ है, और फ़र्ज़ का माना ये है कि जब तक इसकी अदायगी नहीं होगी हज नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे नमाज में भी फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ अगर छोड़ दें, हम सजदा ही नहीं करते, रुकू ही नहीं करते, नमाज नहीं होगी, भले हम सजदा साहब ही क्यों ना कर लें फिर भी नमाज नहीं होगी। फ़र्ज़ की तलाफ़ी जो है वो नहीं हो सकती जी। ठीक, इसी तरह यहाँ अगर हम फ़र्ज़ की अदायगी नहीं करते, भले हम दम ही क्यों ना दे दें, लेकिन वो फ़र्ज़ की अदायगी नहीं होगी और हज भी नहीं होगा जी। इसकी सूरत ये है कि फिर हम जो है थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, कोई तरतीब बना लें ऐसी कि औरत जब पाक हो जाए तो पाक होने के बाद वो गुस्ल करे और अपना हज कर ले। लेकिन अगर जाना लाजिम हो और ये समझते हैं कि यार इसके अलावा सूरत ही कोई नहीं है, फंस गए हैं, टिकट आगे नहीं जा रही, परेशानी है, तो ये हमारे लिए नज़म जो है बहुत मुश्किल हो गया है, तो फिर ये जब तक ये करेगी नहीं तवाफ़ ज़ियारत, खामिन भी इसके लिए हलाल नहीं होगा जी। ठीक है ना जी। तो फिर अगर ये उसी हालत में कर लेती है, ठीक है, तो तवाफ़ ज़ियारत तो हो जाएगा, फ़र्ज़ भी अदा हो जाएगा, ठीक, और एहराम भी इसका मुकम्मल हो जाएगा खामिन के हवाले से जो है, तो फिर वो बुदना देना पड़ेगा। फिर ये हज का सबसे बड़ा जो जुर्माना है वो इसके ज़िम्मे लाजिम हो जाएगा। ठीक, इसलिए मशवरा यही है कि अव्वल तो ये टेबलेट्स वगैरह डॉक्टर से मशवरा करके जाएं कि कोई ऐसी अद्वियात ले जाएं कि ताकि ये परेशानी ना हो, ये वाली सूरत पेश ही ना आए। ठीक, लेकिन अगर फिर भी आ जाती है तो फिर इसको मौखर करना अगर मुमकिन है तो हर मुमकिन कोशिश करके मौखर किया जाए, फिर गुस्ल वगैरह करके ये किया जाए। जो शॉर्ट पैकेज की वजह से मामला पेश आते हैं मस्तूरात को, उसमें हजरत ये फरमा रहे हैं कि अगर अय्याम के दिन है तो टैबलेट वगैरह से किसी भी तरीके से डॉक्टर से मशवरा करके मामला को ऐसा करें कि तवाफ़ ज़ियारत सही तरीके से अदा कर लें, ऑप्शन 1। सेकंड ऑप्शन ये है कि फ्लाइट को डिले करवाएं, अगर मुमकिन हो, ऑप्शन तो है ना, वो कि मुश्किल है, लेकिन बहरहाल तवाफ़ ज़ियारत ज़रूरी है, उसके बगैर काम नहीं है, तो फ्लाइट को डिले करवाएं। और अगर ये सारी चीज़ें मुमकिन न रहें और बहुत सी को मजबूरी हो, तो फिर ये है कि शर्मिंदगी के एहसास के साथ, तौबा इस्तिग़फ़ार के साथ उसी हालत में तवाफ़ ज़ियारत कर लें, इससे फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, औरत शौहर के लिए हलाल हो जाएगी और वो जो रुकावटें हैं, वो पाबंदियाँ हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन एक बुदना यानी एक मुकम्मल ऊँट इसमें देना होगा। हदूद हरम मक्का मुकरमा में एक बुदना, एक कुर्बानी मुकम्मल ऊँट की, यानी 7 छोटे जानवरों की एक मुकम्मल ऊँट वहाँ पे करना होगा। तो इस सूरत में औरत इस मसले से निकल आएगी। और मैं ये समझता हूँ कि इस मसले पे अगर गौर किया जाए तो आने वाले हज नहीं, गुज़िश्ता हजों में भी बहुत सारे लोगों के मसाइल आएंगे। मेरे ख्याल में देखिए, मेरी बात सुने, को खुदा न खासा कोई उज़र आ जाता है, कोई बंदा बीमार हो जाता है, कोई बेहोश हो जाता है, तो क्या करेंगे ये? क्योंकि फ्लाइट मौखर हो ही जाएगी ना कोई सूरत लगाकर, तो अल्लाह के लिए भी कोशिश कर ली जाए पूरी। ठीक है ना, क्योंकि इस हालत में मस्जिद में जाना भी तो हराम है ना, नापाकी की हालत में मस्जिद में हराम है, वो मस्जिद हराम है। हज ये फर्ज है, हज नफिल भी हो तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब हमने इतने पैसे खर्च किए और वहाँ जा रहे हैं, कुर्बानी सब कुछ को छोड़कर, तो हज की हिफाजत ये ज़रूरी है। और ये उलमा मुफ्तियान हजरात ही हमें समझा सकते हैं, हमें अपनी तरफ से कोई जो है ना जुगाड़ नहीं निकालने, कोई रास्ते नहीं निकालने, मुस्तनद मुफ्ती हजरात से पूछ कर सीख कर ही हज किया जाए। तो अपने हज को महफूज रखने के लिए जो शॉर्ट पैकेज में मस्तूरात हैं, वो इन मामला को और अच्छे तरीके से समझें, गौर करें, मुफ्ती हजरात से राब्ते में रहें और फिर इसको मुकम्मल करें। ये मर्दों की भी जिम्मेदारी है, जो अपने साथ अपनी बहन, वालदा, बीवी को लेके जा रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि काम मुकम्मल हो जाए। अच्छा, तो एक सवाल और भी है, बहुत इस वक्त मसला पेश आता है। अभी चंद दिन पहले भी किसी ने पूछा कि वो पता नहीं कौन से मुल्क से, पाकिस्तानी है, किसी और मुल्क से आए और सीधा मक्का मुकरमा पहुंच गए और मस्जिद आयशा जाके एहराम बांधा और एहराम बांध के फिर उम्रा करने चले गए। तो इस किस्म के कई लोग हैं, नावाकियत के ऊपर भी, और बात कहते हैं जी हम इतना ट्रैवल कर, कुछ सुस्ती भी है, तो इनके लिए क्या हुक्म है? सुस्ती भी है, कोताही भी है जी। कोताही ये है कि आप लाखों रुपया लगाकर जा रहे हैं,
यार जो करने जा रहे हैं इतनी बड़ी इबादत है, उसका तरीका ही सीख कर चले जाएं, किसी से पूछ कर वो चले अपनी जाएं, तरफ से अंदाजे लगा लेते हैं। तो उससे फिर आपकी इबादत खराब होती है। अब आप देखें कि इन्होंने जो उसको क्रॉस किया मीकात को बगैर एहराम के, उसका गुनाह भी हुआ। अब ये कोई उज़र नहीं है कि पता नहीं था, भाई पता नहीं था तो पता करना था। जरूरी मसाइल का सीखना तो फर्ज है, जरूरी है, ठीक है ना जी। तो इन मसाइल को पहले सीखना चाहिए था। बहरहाल अगर किसी ने क्रॉस कर ली मीकात एहराम के बगैर, भले हज के लिए जा रहा हो या उम्रे के लिए जा रहा हो, तो इसके लिए दो सूरतें हैं। या तो ये किसी भी मीकात के ऊपर चला जाए और वहां से एहराम दोबारा बांध कर आ जाए, इस सूरत में दम नहीं आएगा, क्योंकि जो कमी आई थी कि मीकात से पहले एहराम नहीं बांधा, उसकी तलाफी हो गई। इसने दूसरी मीकात के ऊपर जाकर बांध लिया और वहां से करीब तरीन इसको ताइफ जाना पड़ेगा कम से कम, ठीक है ना जी। जद्दा जियाराना वो मीकात के अंदर है, अगर से हरम के बाहर है, आफाक में जाना। हाँ जी, इसको वहां जाना पड़ेगा। वहां से अगर इहराम बांध के आ जाता है दम भी नहीं होगा, और अगर वहां नहीं जाता, मस्जिद आयशा या जद्दा या हरम के बाहर कहीं से भी इहराम बांध लेता है, तो फिर इस केस में उसके ऊपर एक दम आ जाएगा, उसको तौबा इस्तिगफार भी करनी होगी। हर जगह के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, रेड एरिया होते हैं, रेड जोन होते हैं, दुनिया के अंदर भी चीजें होती हैं। तो शरीयत ने हुदूद हरम मक्का मुकरमा में दाखिल होने से पहले एहराम की शर्त लगाई है। हम पाकिस्तान से जाए, दुनिया से कहीं भी जाएं, तो मीकात से पहले पहले हमने नियत जरूर करनी है एहराम की, और एहराम मर्दों का प्रॉपर जो होता है वो हो। खुदा न खासा किसी भी वजह से अगर ये गलती हो गई और हम मक्का मुकरमा पहुंच गए, अब क्या करें? अब तौबा इस्तिगफार तो दोनों सूरतों में है। बेहतर सूरत ये है कि वहां से ताइफ चले जाएं, यानी जो मीकात से हम आए, गलती हो गई, अब हम दोबारा बाहर निकल जाएं, हरम से आफाक में आ जाएं, ताइफ चले जाएं और ताइफ से वापस आ जाएं और वहां से उम्रे का एहराम बांध लें, तो इसमें दम नहीं पड़ेगा। बहरहाल गलत फिर भी हुआ। और दूसरी सूरत ये है कि अब वहां आ गए, अब मस्जिद आयशा से एहराम बांधे, ये घर से अपने होटल से एहराम बांधे, वही की नहीं, हरम के बाहर जाना, उम्रे के एहराम के लिए बाहर जाना पड़ेगा, उम्रे के हरम मस्जिद आयशा जाना पड़ेगा। अब दूसरी सूरत ये है कि अगर ताइफ नहीं जा सके तो मस्जिद आयशा जाके उम्रे का एहराम बांध ले, और एहराम बांधने के बाद तौबा इस्तिगफार के साथ साथ एक दम देना जरूरी होगा। वो दम इसलिए है कि हम मीकात को बगैर नियत के क्रॉस कर आए हैं। इसी तरह से जी तो ये एक बहुत अहम जरूरी चीज है। एक बहुत बड़ा मसला जो हमेशा पेश आता है, उसमें बनूरी टाउन का फतवा कुछ और है, दारुल का फतवा कुछ और है। हुदूद हरम मक्का तो एक अलग चीज है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तय कर दी अल्लाह के फजल, अल्लाह के हुक्म से, वो तो हो गया। हुदूद शहर मक्का, जो बल्दिया मक्का है, उसके बारे में अब मक्का मुकरमा 14 साल पहले छोटा था, नहीं, अब बहुत बड़ा हो गया, हमारा लाहौर बहुत बड़ा हो गया। तो उसमें अराफात को कैसे लिया जाए, जो आप बात समझ ही गए कि जो 15 दिन वाले हैं या 40 दिन वाले हैं, ये किस तरीके से मुकीम होंगे और किस तरीके से ये मुसाफिर रहेंगे। देखिए, ये बड़ा अहम मसला है, और ये जो हाजी हजरात वहाँ जा रहे हैं, इनके लिए बड़े मसाइल भी बनते हैं, बड़ी परेशानी भी होती है। कोई कह रहा होता है कि जी आपने कसर करनी है, कोई कह रहा होता है आपने पूरी नमाज पढ़नी है। इस सिलसिले में जामे शफिया का मौक़िफ़ और इसके अलावा अक्सर जो उलमा हैं उनकी राय ये है कि जैसे भी आपने फरमाया कि आबादी अब फैलती जा रही है, तो आबादी के फैलाव की वजह से शहर भी फैलता जा रहा है। जैसे हम लाहौर देखते थे, लाहौर तो इतना फैला हुआ नहीं था, अब जाहिर आबादी निकलती जा रही है, तो लाहौर कहाँ से कहाँ पहुँच गया जी। यही सूरत हाल वहाँ भी पेश आई है जी। तो अब आबादी को अगर देखा जाए तो ये अब ये मिना की तरफ को निकल गई है जी। तो इस लिहाज से मिना मुज़दलिफ़ा इस वक्त ये मक्के का हिस्सा बन चुका है। लिहाजा जो हाजी वहाँ जा रहे हैं, मिना, मुज़दलिफ़ा और मक्के का क़याम मिलाकर अगर 15 दिन या उससे ज़ायद उनका बन जाता है, तो इस केस में 2 मसले आएंगे उनके साथ। एक तो ये कि वो नमाज पूरी अदा करेंगे क्योंकि वो मुकीम है जी, वो सफरी नमाज अदा नहीं करेंगे, और दूसरा चूंकि वो मुकीम बन गए हैं, अगर वो साहिब निसाब हैं तो ईद वाली कुर्बानी अलग से उनके जिम्मे में वाजिब हो जाएगी। लेकिन ईद वाली कुर्बानी वहाँ भी हो सकती है और यहाँ पाकिस्तान में भी हो सकती है। अलबत्ता हज वाली कुर्बानी अगर ये हज तमत्तो या किरान कर रहे हों तो ये वहीं अदा करना जरूरी है, ये पाकिस्तान में नहीं हो सकती।
لیکن میری آپ کے توسط سے گزارش ہے وہ یہ ہے کہ وہاں وہ جگہ جھگڑا کرنے کی نہیں ہے، لہٰذا وہاں خواہ خواہ بحثیں نہ کریں، اور ادھر بھی وہ بھی کچھ علماء ہیں جن کی رائے یہ ہے کہ یہ حصہ نہیں ہے، بھائی جو جیسے کر رہے ہیں اس کو کرنے دیں۔ آپ کو ہم نے اپنا موقع بتا دیا، اور اکثر علماء جو ہیں ان کی رائے بھی بتلا دی، وہ یہی ہے کہ یہ اب مکے کا حصہ بن چکا ہے جی، آپ اس کے مطابق عمل کر لیں اگر آپ کرنا چاہیں، اگر کوئی نہیں کرنا چاہ رہا ان کو ان کے اوپر دوسرے حضرات کے اوپر اعتماد ہے وہ اس کے مطابق کر لیں، لیکن جھگڑا نہ کریں۔ جزاک اللہ۔ اس مسئلے کے اندر نا کئی چیزیں نکلتی چلی آ رہی ہیں۔ وہ احباب جو اس بات کے قائل ہیں کہ مکہ مکرمہ بڑا اور پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور شہر جو ہے وہ بڑھنے کی وجہ سے وہ مینا اور مزدلفہ کو حدود شہر مکہ میں، حرم مکہ کی بات نہیں ہو رہی، حدود شہر مکہ میں شامل کر رہے ہیں، تو وہ اس بنیاد پر یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ 15 دن کا قیام حج سے پہلے کے دن، حج کے ایام ملا کے اور بعد کے اگر 15 دن مکہ مکرمہ میں ہے تو یہ شخص مسافر ہے اور یہ مقیم ہے، یہ شخص مقیم ہے تو یہ پورے سفر میں مکمل نمازیں ادا کرے گا، اور مقیم ہونے کی وجہ سے صاحب استطاعت بھی ہے تو کیا کرے گا؟ قربانی بھی ادا کرے گا۔ قربانی وہاں کرے کہ یہاں کرے، دونوں آپشن موجود ہیں۔ میری رائے محمد ابراہیم کی ہے کہ یہاں کر لیں، بہت آسان بھی ہے، سستی بھی ہے، اور وہ گوشت بھی یہاں کے لوگوں کے کام آ جائے گا۔ باقی اختیار دونوں ہے، لیکن یہاں کرنا یہ میری رائے ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر ایک اور بات، بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ مینا، مزدلفہ، عرفات وغیرہ یہ باہر ہی ہیں، یہ اس کو ہم شہر مکہ میں قبول نہیں کرتے، 1400 سال سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے تو باقی رہے گا۔ تو یہ اس طرف بھی جید علماء کرام ہیں۔ تو مفتی صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ پھر بحث اور جھگڑے سے بچنا ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، یہ بھی جدال بن جاتا ہے۔ کسی قسم کے جھگڑے سے نہیں جھگڑے سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ تو کوئی اگر اس پر عمل کرتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اب الحمدللہ کئی دفعہ جانے کا موقع ملا تو ہمارے ہی گروپ میں اگر کیا ہوا کہ گروپ میں تو لازمی بات ہے درجنوں لوگ ہوتے ہیں، 2-4 تو نہیں ہوتے۔ اب کچھ نے اس کو قبول کیا تو کچھ نے اس کو قبول کیا، تو ہمارے خیمے میں 2 جماعتیں ہو گئیں۔ تو ٹھیک ہے، ایک نے وہ سفر والی کر لی، ایک نے وہ کر لی، ہم نے کہا ٹھیک ہے، تو کوئی کچھ کر لیتا ہے، ورنہ عام طور سے ہم ایسی سچویشن نکال لیتے ہیں کہ بھئی آپ مقیم کے پیچھے پڑھ لو تو آپ کی پوری ہو جائے گی۔ احتیاط تو اسی میں ہے کہ ہاں وہ 4 پڑھ لی جائیں، کیونکہ جہاں شبہ آ جائے نا، ویسے بھی 2 اور 4 میں تو 4 ہی پڑھنی چاہیے، کیونکہ 4 میں 2 آ جاتی ہیں لیکن 2 میں 4 نہیں آتی۔ اچھا، اب یہاں ایک اور چیز جو بہت خوبصورت اس سے آپ نے سمجھائی ہے، اس کو تھوڑا اور واضح کر دیں۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ چند دن پہلے نا میں نے رپورٹ کروائی، اپنا بہت سارا پورا باڈی کا چیک اپ کروایا کہ بھئی کیا کیا ہے اندر، کیا چل رہا ہے۔ وہ کر کے جو میرا فیملی ڈاکٹر ہے ان کو بھی بھیجیں، اور 2-3 لوگوں کو اور بھی شوقیہ بھیجنے کی ذرا رپورٹ لے لو۔ ایک رپورٹ کو دیکھ کے 4 ڈاکٹروں نے 3 الگ الگ رائے دی۔ ایک نے کہا اس مسئلے کو دیکھیں، ایک نے کہا اس کو دیکھیں، تیسرے نے کہا اس کو دیکھیں۔ رپورٹ ایک ہی ہے، اور ایک نے ایک کو زیادہ ہائی لائٹ کیا اور دوسرے نے کہا کہ یار وہ اتنا ایشو نہیں ہے، یہ زیادہ سینسیٹیو ہے، آپ اس طرف زیادہ آتی ہیں۔ تو میں نے ساری چیزوں کو لیا اور پھر دیکھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، تو اس کو ایک مناسب طریقے سے کر لیا۔ اب یہاں پر آپ ہمیں یہ سمجھا دیں کہ یہاں آپ اجازت دیتے ہیں کہ بھائی کوئی آدمی حرم حدود شہر مکہ کو اور مینا مزدلفہ کو حدود حرم میں مان رہے اور کوئی نہیں بھی مان رہا، تو دونوں ایک وقت میں ٹھیک ہے۔ بس جس کو جو مناسب لگ رہا ہے نا جی، اختلاف برا نہیں ہے، جھگڑا کرنا برا ہے۔ جی، میرا سوال اس میں یہ تھا کہ یہ والا اختلاف رحمت ہے، لیکن اس کی اختلاف کی لمٹ کیا ہے؟ جیسے حرام حلال اور عقائد کے درمیان تو کوئی اختلاف نہیں، وہ تو مضبوط اور ایک ہی ہیں۔ جہاں گنجائش ہے وہ ذوق کی وجہ سے یا نقطہ نظر کو دیکھنے کی وجہ سے ہے۔ اصل میں یہ چونکہ اب وہ آبادی کا پھیلاؤ اس طرف چلا گیا نا، اسی لیے اکثر علماء کی، ہماری بھی، حتیٰ کہ مولانا محمود اشرف عثمانی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کراچی میں نے حضرت کو فون کیا جی، میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت اس میں آپ کا موقف اور شیخ الاسلام کا موقف اور جامع کا موقف کیا ہے جی؟ تو حضرت نے مجھے خود فرمایا، انہوں نے کہا کہ بھائی شاہد یہ تو آبادی جو ہے پھیل کر وہ پہنچ چکی ہے ادھر، اور ہمارا واضح موقف ہے یہی کہ وہ اس کا حصہ بن گیا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ مضبوط رائے، زیادہ مضبوط موقف جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس کا حصہ مان لیں گے، یہ زیادہ مضبوط موقف ہے،
ताहम अगर कोई नहीं मान रहा, उसके पास अगर कोई दलाइल मौजूद है, उस बुनियाद पर कर रहा है, तो हम ये कह रहे हैं आप उससे बहस ना करें, इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल करने वाला है। हो सकता है उसकी भी हुस्न नीयत हो, और यकीनन उसकी हुस्न नीयत होगी, तो अल्लाह ताला उसके साथ भी उसी तरह का मामला इंशाअल्लाह फरमाएंगे जी इंशाअल्लाह। ये बात तो होगी। मेरा इसमें ये था कि बहुत से लोग आजकल उलमा के राय के इख्तिलाफ को बाकायदा हिट करके उलमा को बदनाम करते हैं और आवाम को, नौजवान नस्ल को खराब कर रहे होते हैं। उस चीज को सामने रखते हुए, जैसे हमने आप लोगों से सुना है कि जो हराम हलाल है, जो अकायद की चीजें हैं, उनमें उलमा इकराम का कोई इख्तिलाफ नहीं है। जो 95% में इख्तिलाफ नहीं है, सिर्फ 5% इख्तिलाफी मसाइल हैं तकरीबन ऐसे ही। तो ये इख्तिलाफी मसाइल तो बहुत कम है, और बाकी ज्यादातर मसाइल ऐसे ही हैं। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूँ, ये इख्तिलाफ जो है ये बुरा नहीं है, इख्तिलाफ। और दूसरा, ये सिर्फ उलमा भी नहीं, अभी आपने बताया रिपोर्ट एक ही है और 4 डॉक्टरों में इख्तिलाफ हो गया, चारों ने, अभी हमारे सियासतदानों में इख्तिलाफ नहीं चल रहा जी। ठीक, हमने तो डंडे नहीं उठाए हुए, लेकिन हम तो फिर भी दलील के अंदाज में ही बहस करते हैं उनके साथ। हर एक के बस सहाबा भी इख्तिलाफ कर लेते थे, दलील की बुनियाद पर कर लेते थे। इसी तरह एक दलील वो बयान कर रहे हैं, एक दलील हम बयान कर रहे हैं, या जमहूर बयान कर रहे हैं, इसमें मेरा ख्याल में कोई मुज़ायका नहीं है। अलबत्ता झगड़ना और किसी को बुरा बुला कहना, गालम गलौज, ये एक बुरी चीज है। शरीयत ने इससे मना की है, और वाज़ेह तौर पर आयत भी वला जिदाल फिल हज, वो नहीं होना चाहिए। एक और चीज, अपने ज़ौक़ की बात है, मुझे बड़ी इससे तकलीफ होती है, अच्छा नहीं लगता। इधर मस्जिद में अगर कोई जूता पहन के दाखिल हो जाए और आगे सफ में बैठ जाए और थोड़ी देर बैठे, तो हम उसको 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं करते। बैतुल्लाह शरीफ में लोग जूतों के साथ, पहले तो बात सिर्फ हमें खास किस्म के लोग नजर आते थे, अब तो हमारे पाकिस्तानी भाई भी जूतों के साथ तवाफ कर रहे हैं, तो उन्हें जब समझाओ तो समझ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर एक उनका उधर ये होता है कि 7 किलोमीटर का तकरीबन पहली मंजिल का तवाफ है, तो पाँव छिल जाते हैं। तो उसमें 2 बातें ये बहुत, देखिए, अगर तो उज़र है ना, और जूता पाक भी है, साफ भी है, ठीक है ना। जैसे अक्सर हमारे साथी जो है वो, उधर भी मैं देखता हूँ, जिस वक्त सफा मरवा की वो कर रहे होते हैं ना, वो जो साई होती है, वहां भी उन्होंने पहना होता है, और यहाँ भी बहुत साथियों ने पहना होता है। जूता अगर पाक भी है, साफ भी है, तो फिर तो उसकी गुंजाइश है जी, ठीक। लेकिन अगर कोई उज़र नहीं है, तो फिर अदब का तकाजा यही है कि फिर उसको इस्तेमाल ना किया जाए। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ना इसको मायूब समझा जाता है, इसका मदार उर्फ के ऊपर भी आ जाता है जी, ठीक है ना जी। तो वहाँ वो लोग इतना नहीं समझते, वो तो बल्कि मैं एक रिवायत देख रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा जूता पहन कर नमाज पढ़ा रहे हैं जी, जिब्रील अमीन तशरीफ ले आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूता उतार दिया, हुजूर ने उतारा तो सहाबा ने भी पीछे उतार दिया, यानी जूता पहन कर नमाज हो रही है, सहाबा ने भी जूता उतार दिया। तो अब वो बाद में हुजूर ने पूछा कि तुमने क्यों उतारा था? उन्होंने कहा जी हमने आपको देखा, हमने कहा शायद हुक्म आ गया, नमाज में जूता नहीं पहन सकते। तो आसिफ ने फरमाया मुझे तो जिब्राइल अमीन आए थे, हमारे जूतों में कोई नजासत लगी हुई है, तो मैंने तो इस वजह से उतारा था जी। तो मतलब ये है कि ये उर्फ की बात भी होती है, हमारे यहाँ अदब यही है। तो ये इसका मदार जो है ना, ये अदब का बेअदबी का उर्फ के साथ भी होता है। हम इसको बड़ा जो है ना वो बेअदबी समझते हैं, इसलिए जो है ना उसमें एहतियात ही बेहतर होती है कि आप, हाँ अलबत्ता अगर कोई उज़र है, कोई शुगर का मरीज है, कोई नहीं चल सकता, वो कह रहा पाँव जख्मी हो जाएंगे, तो वो अगर पहन ले, जबकि जूता पाक भी हो, साफ भी हो, तो उसकी भी गुंजाइश है। बहरहाल आपने तो बहुत गुंजाइश दे दी है। मैं तो साथियों को जो मशवरा देता हूँ ना, उनसे ही कहता हूँ कि भाई आप जूता ना पहने, आप कोई ऐसी चीज ले लें जो आपके पैर के ऊपर आ जाए, वो मुकम्मल जूता ना हो। ऐसी चीजें मिलती हैं वहाँ, बहुत मिलती हैं, वो नीचे से पूरा आपका जो नीचे का तलवा है मुकम्मल कवर हो जाता है, तो वो पहन के तवाफ कर लें, तो आसानी है। ये तो बल्कि ज्यादा बेहतर है। हम ऐसी चीज पे क्यों जाएं? जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया फखलअन अलैक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस हुआ, तो अब ज़ौक़ को देखें तो वहाँ अदब का तकाजा भी है। लेकिन ये उस सूरत में है ना, अगर वो मौजूद हो, फर्ज कर लें, अब ये कई लोग देख रहे होंगे, अगर किसी के पास उस वक्त ये सहूलत मौजूद नहीं है, तो हम उसको नाजायज तो नहीं कह रहे, और वो शुगर का मरीज भी है, सही है, ठीक। अव्वल तो यहाँ से बंदोबस्त करके जाएं अगर ये मुमकिन है, और करना भी चाहिए उन्हें। लेकिन अगर नहीं करते, उधर पहुंच जाते हैं, जूता पाक साफ है, तो फिर इसको हम गुनाह नहीं कह सकते, जबकि उधर भी है जी। लेकिन उसमें ना जूते का ख्याल रखें कि कोई जूता टॉयलेट में जा रहा है, वही हरम में जा रहा है। ये हमने पहले कहा, तो कि इसके लिए अलग से जूता रखें, जो पाक भी हो, साफ भी हो। ये वो वाला जूता ना हो जो बाहर वो उसमें इस्तेमाल होता हो, ये तो पहली शर्त है ये, वरना तो वो जगह भी उसके अदब के तो फिर सख्त खिलाफ है जी। एक ये साथियों से गलती हो जाती है
एहराम के हवाले से। अच्छा, एहराम वो समझते हैं कि चादरें पहनने का नाम है। ये मैं आपके तवज्जो से, बड़ी जरूरी चीज है, तो ये ऐसी गलती है जिसकी वजह से ना उम्रा होता है ना हज होता है जी। वो समझते हैं चादरें पहन ली हमारा एहराम हो गया जी। तो ये चीज समझने की है कि एहराम चादरें पहनने का नाम नहीं है। एहराम नाम है नियत करके तलबिया पढ़ने का जी। ठीक है, हम उम्रा करने जा रहे हैं, उम्रे की नियत करेंगे, ए अल्लाह उम्रे की नियत करता हूँ, आसान फरमा ले, कबूल फरमा ले, और उसके बाद तलबिया पढ़ेगी, अब आपका एहराम हो गया। भले हम इन्हीं कपड़ों में बैठे हुए हैं, इन कपड़ों में भी हमारा एहराम हो गया जी। ठीक, तो एहराम के बाद चूंकि सिले हुए कपड़े पहनना मना है, इसलिए कहते हैं चादरें पहने, और चादरें पहले पहना दी जाती हैं क्योंकि जैसे ही नियत और तलबिया करेंगे तो एहराम में आ जाएगा, तो सिले हुए कपड़े पहनने हैं, वो तो गुनाह होगा, मना है। बहुत टेक्निकल पॉइंट को बताया है। तो बात साथी हमें बाद में पूछते हैं, कहते हैं मुफ्ती साहब वो नियत तो तलबिया तो हमने पढ़ा ही नहीं था। भाई ऐसे ही जैसे नमाज में हम नियत तो कर लेते हैं, अल्लाह आसान फरमाए, सारे नियत करते हैं, लेकिन अल्लाहु अकबर ही ना कहे तो नमाज तो शुरू ही नहीं होगी। इसी तरह तलबिया नहीं पड़ेगा तो वो एहराम होगा ही नहीं जी। ये शर्त है उसके लिए, एहराम के लिए तलबिया पढ़ना नियत करके जी, इसके बगैर एहराम नहीं होगा जी। ये चीज मैंने कहा आपके तवज्जो से, क्योंकि बाद साथियों का फोन आया, फिर हमें अंदाजा हुआ कि लोगों को इस तरफ जो है ना वो नहीं है जी। अगर आप बात साथियों से बात सुना, ये बात याद आ रही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सहाबा कराम के साथ हज पे तशरीफ ले जा रहे थे, तो मक्का मुकर्रमा के करीब पहुंच के हज़रत सुराका बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यूं अर्ज़ किया था, अल्लाह के नबी आप हमें हज ऐसे सिखाइए जैसे आप अभी आज ही पैदा हुए। तो इस जज्बे से ये मालूम होता है कि तमाम हुज्जाज को जो एक से ज़ायद भी जगह जा चुके हैं तो सीखना और बार बार सीखना चाहिए, गलतियों से बचना चाहिए। उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह जामे शरीफ में हर इतवार की तरतीब है, वो जरा बता दीजिए जी। वो भी बात, और उसके जामे शफिया में हर इतवार को तकरीबन 10:30 बजे के करीब वो नज़म बनता है जी। हज का मुकम्मल, उम्रे का मुकम्मल तरीका जो है वो बतलाया जाता है। एक चीज और भी मेरे ज़हन में आई है, वो भी बड़ी जरूरी चीज है। बात साथी अपनी जगह किसी को वकील बना देते हैं रमी के हवाले से। ठीक, तो इस सिलसिले में उसूली बात यह है कि अगर तो इनके लिए रमी करना, पैदल चल कर उधर जाना मुश्किल है, मुमकिन नहीं है, तकलीफ होती है, मशक्कत होती है, कोई बीमारी की ऐसी कैफियत है, ऐसा ज़ौफ है, तो फिर तो चलो मजबूरी है। मजबूरी की सूरत में अगर ये अपना वकील और नाइब बना देते हैं वो तो मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन देखने में ये आया है कि वो जो है वो शॉपिंग में पूरी हो रही होती है, बाकी सारे काम चल रहे होते हैं, लेकिन जब रमी की बारी आती है तो फिर उस वक्त जो है ना वो अपना वकील बना दिया जाता है। तो ये 5 दिन है, 5 दिन, और हर शख्स की ख्वाहिश है कि हमें हज मकबूल और मबरूर मिले जी, क्योंकि जिसको हज मकबूल और मबरूर मिल गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, इसका बदला सवाए जन्नत के और कुछ भी नहीं है, और वो ऐसे हो जाएगा जैसे कि आज ही उसको उसकी माँ ने जना हो जी। ठीक, तो हज मकबूल और मबरूर किसे मिलेगा? जो गुनाहों से पूरे तौर पर अपने आप को बचाता है और फिर हुजूर के तरीके के मुताबिक हज करता है जी। तो आप सब रमी फरमाई थी, तो अब 2-3 दिन अगर मुजाहिदे के हैं, अगर हम ये थोड़ा सा मुजाहिदा कर लेंगे तो इंशाल्लाह हर कदम जो है ये बड़ा मुबारक कदम है और ये बड़ा कीमती कदम है। ठीक, फिर खुदा जाने जिंदगी में मौका आए या ना आए, तो इसलिए बिला वजह इसको छोड़ना नहीं चाहिए। रमी के अंदर नाइक बनाने का सिलसिला ऐसा है कि एक सफर में मैं था, तो एक साहब ने, हम लोग मिना वापस आ गए, कुर्बानी हो गई, सारा कुछ हो गया, तो मुझे उन्होंने सीधा पूछा, मैं मसाइल वहाँ लोगों को बता रहा था, उन्होंने सीधा पूछा कि ये बाकी जो रमी है मैंने तो नहीं करनी है, बताएं इसका दम कितना देना है, कितने पैसे चाहिए? खुदा के तो बड़ा एकदम अफसोस हुआ, क्या कह रहे हो? वो तो बिल्डर थे, बड़े आदमी थे, क्या अंदाज है, क्या कह रहे हैं कि कितने पैसे चाहिए, कैसे मेरा काम खत्म हो जाता? मैंने नहीं जाना कि ये अंदाज तो बहुत ही बुरा है। ये गलती से गलती हो जाए तो फिर तो एक अलग बात है कि एक गलती से गलती होगी, जानबूझकर गलती करते हैं, यानी चलने की हिम्मत भी है, सकत भी है, जा भी सकते हैं, सिर्फ सहूलत आराम पसंदी के लिए कि मैंने नहीं जाना, तो फिर देखे ना, तो मैंने कहा फिर हज मकबूल भी ऊपर से हमने लेना है जी।
دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں جی، تھوڑا سا مجاہدہ کرنا ان پڑے کا گا. جو ایک تو ان کا انداز غلط تھا، انداز کو ہم سائڈ پہ رکھ دیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم رمی پہ نہیں گئے اور قربانی دے کے ہمارا حج فارغ ہو جاتا ہے، جان چھوٹ جاتی ہے ہماری، یہ الفاظ یہی استعمال کرنے پڑیں گے نا، تو ٹھیک ہے ہم وہ دے دیتے ہیں. تو یہ رویہ بھی جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے. اللہ رب العزت سے ہمیں جنت چاہیے، تو یہ رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے. دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو دیکھ لیا جائے، نہ پنکھے ہوتے تھے نہ اے سی ہوتے تھے، کوئی حالات اور وہ گرمی ادھر کی کیسی ہے وہ دیکھ لی ہے ہم نے بھی، وہ جو گرمی ہے. تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جایا کرتے تھے جی، رمی بھی ہوتی تھی، ٹھہرتے بھی تھے. ایک ایک کام باقی اس سلسلے میں جو ساتھی مشورہ کرتے ہیں تو وہاں ان کو بتایا یہ جاتا ہے کہ آپ مغرب کے بعد رمی کر لیں، تھوڑا دیر سے چلے جائیں، مستورات بھی آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ الحمدللہ ویل چیئر پہ بھی عورتیں اس کے جمرہ عقبہ اور باقی شیطانوں کے ساتھ بالکل ساتھ کھڑی ہو کے مارتے ہیں، ویل چیئر والی عورتیں بھی اور مرد بھی. تو رش کے وقت میں نہ جائیں، تھوڑا سا ڈیلے چلے جائیں. تو یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ یہ اکثر ساتھی یہی گرمی بہت ہے، رش بہت ہے، خواتین بھی ساتھ ہے. بھئی آپ عصر کے بعد چلے جائیں، نہ ہو سکے مغرب کے بعد چلے جائیں، جب تک فجر کا وقت داخل نہیں ہو جاتا رمی کا وقت باقی ہے. دیکھیں شریعت نے تو بہت سہولت رکھی ہے، بہت آسانی ہے، بہت. اب اتنی سہولت کے باوجود اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو یہ میرے خیال میں ناشکری بھی ہے جی. رمی کرنا یہ کیا ہے؟ حج کا ایک رکن ہے، ایک عمل ہے، واجب ہے جی، واجب ہے. رمی کرنا شیطان کے ساتھ بیزاری کا اظہار ہے، اور رمی کرنا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے اس کو ہلکا نہیں جاننا چاہیے، بہت قیمتی چیز ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے. حضرت ایک آخری بات، ہمارا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے اب، کیونکہ حج بہت مہنگا ہو گیا ہے. مکہ مکرمہ کی قریب کی رہائشیں اب عام آدمی کے تو ہاتھ سے گئی. یہاں سے سیدھا عزیزیہ سے سیدھا مدینہ طیبہ اور پھر پاکستان یا جو بھی. تو بعض ایک گروپ ایسے ہیں کہ تھرو ان کی رہائش عزیزیہ میں ہے، عزیزیہ مینا سے جڑا ہوا ہے. اب حج کے دنوں میں یہ حاجی صاحب اکثر میں بہت بڑی تعداد وہ مینا کے خیموں میں رہنا پسند نہیں کرتی، وہ عزیزیہ کی بلڈنگ میں آ جاتی ہے، وہ 2-3 دن وہیں گزارتی ہے. تو یہ بھی ایک تو اس میں جواز کیا ہے، پھر فضیلت. دیکھیے ان راتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم منا ہی میں رہے ہیں، بے شک ٹھیک ہے، اور اس وقت اے سی بھی نہیں ہوتے تھے، پنکھے بھی نہیں ہوتے تھے. میں نے عرض کر دیا وہ آج دیکھ لیا جائے گی. اور اوپر سے ہم جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، لاکھوں روپیہ لگا کر جا رہے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں حج مقبول مل جائے تو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حج مبرور اور مقبول ہی مقبول، تو قبول ہی قبول ہے، اس میں تو کوئی ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے نا. تو پھر ہمارا حج بھی اگر حضور کے مطابق ہوگا تو وہ امید رکھ سکتے ہیں نا کہ انشاءاللہ ہمیں بھی حج مقبول مل گیا. تو لہٰذا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب منا میں راتیں گزاری ہیں، اور رات گزارنا ہی سنت ہے، تو ہمیں پھر بلا عذر ادھر کی راتیں نہیں چھوڑنی چاہیے. وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم اگر ان راتوں میں چلے، وہ کسی ایک رات میں چلے جاتے ہیں تو زیارت کے لیے وہ تو عمل ہے نا. اچھا، آپ کے توسط سے ایک اور بڑی اہم بات اللہ نے ذہن میں ڈال دی جی، کہ یہ جو خواتین بھی ہوتی ہیں، کئی ساتھیوں کے ساتھ والدہ بھی ہوتی ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، تو یہ جو طواف زیارہ ہے نا، یہ 10ویں سے لے کر 12ویں تک، تو اس میں یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا صفا مروہ کی جو صحیح ہے، یہ تقریباً پیک چل رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہر بندے نے کرنی ہے جی، اور 25-30 لاکھ 35 لاکھ جتنا بھی مجمع ہے وہ ادھر جمع ہے جی. اب یہ جو بوڑھے ہیں ان کے لیے مسائل بھی بن جاتے ہیں کئی دفعہ. تو اس کی اگر آسانی اور سہولت جہاں تک لی جا سکتی ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم یہ 8 سے کچھ پہلے حج کا احرام باندھ لیں گے، 7 کو باندھ لیں یا 6 کو باندھ لیں، اور ایک حج کا احرام باندھنے کے بعد نفلی طواف کر لیں گے. یہ تمتع کرنے والوں کے لیے بتا رہا ہوں، نفلی طواف کر لیں. نفلی طواف ہو گیا. نفلی طواف کے ساتھ اگر ہم نیت کر لیتے ہیں یہ حج والی صحیح کر رہے ہیں ہم، کیونکہ وہ صحیح بغیر طواف کی عبادت ہی نہیں ہے جی. طواف لازم ہے اس کے لیے، اور اس کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ احرام بھی ہونا چاہیے اور حج والا ہونا چاہیے جی. وہ عمرے کے طواف احرام میں بھی نہیں ہو سکتی جی. تو حج کا احرام باندھ کر نفلی طواف کر لیں پہلے سے، اور اس کے ساتھ حج والی سعی کر لیں، تو پھر طواف زیارہ کے بعد سعی کرنا جو ہے وہ لازم نہیں رہے گا ہمارے ذہن میں، وہ ختم ہو جائے گی. یہ صورت بھی ہو سکتی ہے.
किरान वालों के लिए तो ये और ज्यादा आसान है, किरान वालों ने तो वो तवाफ़े तवाफ़े कुदूम करना है कुदूम ना, है तो उसके तवाफ़े साथ। कुदूम के साथ कर लें वो, हज की सही कर लें। तो उसके बाद तवाफ़े ज़ियारत के साथ नहीं आएगी। ये तो हज़रत फरमा रहे हैं कि तवाफ़ ज़ियारत के बाद सही जो होती है तो वो उसके बाद ही कामल है, लेकिन अगर कोई पहले करना चाहे तो मिना रवानगी से पहले पहले चंद घंटे या एक दिन कुछ वक्त मुनासिब वक्त जो उनको आसानी हो किसी को, एहराम कर लें, हज की नीयत का एहराम बांध लें, हज का एहराम, और उसके बाद बैतुल्लाह शरीफ पहुंचकर तवाफ के 7 चक्कर मुकम्मल करें, और ये नफली तवाफ है। उसके बाद हज की सही एडवांस में कर लें, बगैर तवाफ के सही होगी नहीं, तो ये एक ऑप्शन है। एक और ज़रूरी बात तो ये है कि सबसे बड़ा मसला ख़वातीन के हवाले से जो वहाँ होता है, जो सबसे उनके लिए परेशान कुल सूरत हाल होती है कि हज के दिनों में ये माहवारी शुरू होगी, शरई उज़र आ गया जी। अब वो परेशान होती हैं, हम हज कैसे करेंगे। अब उनके लिए अर्ज कर देते हैं कि कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सहूलत है अगर मसला पता हो जी। वो मसला क्या है कि वो हज का हर काम इस हालत में भी कर सकती हैं, यानी मिना भी जा सकती हैं, ठीक, उसके बाद वकूफ़ अरफा भी करेंगी वो, और वकूफ़ मुज़दलिफ़ा भी करेंगी, और जमरात पे कंकरियां भी मारेंगी, और उसके बाद कुर्बानी भी होगी जी, ठीक, और उसके अलावा 3 दिन जो कंकरियां मारनी है वो भी होगा। सारे काम हज के उनके लिए करना जायज़ है, ठीक, सवाए एक काम के, एक काम नहीं करना। वो क्या नहीं करना? तवाफ नहीं करना, ठीक। उसके लिए तवाफ़ ज़ियारत जो है उसका जो आखिरी वक्त है वो है 12वीं की गुरूब तक उसकी अदायगी वाजिब है, उसके बाद दम आ जाता है। लेकिन चूंकि ये शरई उज़र है तो 12 में से पहले कर लें, 13 को कर लें, 14 को कर लें, 15 को कर लें, जब पाक हो तो वो कर लें। पहला काम। लेकिन अगर वो ये तवाफ़ ज़ियारत के लिए तो ये पाक होना उनके लिए ज़रूरी है, लेकिन तवाफ़ विदा जो आखिर में आ रहा है वो इनको माफ़ है जी। अगर इनको तवाफ़ ज़ियारत के बाद शरई उज़र शुरू हो जाता है तो तवाफ़ विदा जो है वो इनके लिए माफ़ है जी। अच्छा, एक तो सवाल है इसी दरमियान में याद आया कि बैतुल्लाह शरीफ के तवाफ के लिए तो वुज़ू का होना ज़रूरी है जैसे नमाज के लिए जी। सही के हवाले से इसमें सही के लिए वुज़ू ज़रूरी नहीं, सही बगैर वुज़ू के मुमकिन है, उसके लिए वुज़ू ज़रूरी है। जज़ाकल्लाह खैर जी। चले तो आज सारी बातें हुदूद हरम मक्का की रह गई, तो अगली नशिस्त के लिए फिर दोबारा कुछ निकालेंगे और मदीना तैयबा के हवाले से कुछ बात हो जाएगी। अल्लाह ताला तमाम हुज्जाज किराम को कबूल फरमाए और पाकिस्तान के लिए ज़रूर और उम्मत के लिए ज़रूर दुआएं वहाँ करनी है। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।